اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری شادی کے بعد 2 سال کا عرصہ تو خاصے سکون اور آرام سے گزرا کہ اس گھر کی میں واحد اور چہیتی بہو تھی۔ میرے شوہر کے علاوہ ساس سسر اور دیور بھی تھے، سب بہت اچھے تھے۔ میرے سسر جی کو زیادہ تعریفیں کرنے کی عادت تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ میرے سسر جی سب کے سامنے میری تعریفیں کرنے اور دعا دینے کی عادت تھی۔ سسر جی کی یہ عادت میرے لیے باعث مسرت تھی۔ میری شادی کے 2 سال بعد جب فلک میری دیورانی بن کر آئی تو میں بے حد خوش تھی۔ وجہ نمبر 1 کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی آ گئی، اور وجہ نمبر 2 کہ فلک سے میرے نمبر کچھ زیادہ ہی تھے۔ میں کسی امتحان گاہ میں حل کے لیے پرچے کی بات نہیں کر رہی، دراصل زندگی بھی تو امتحان گاہ ہی ہے نا۔ مجھے ہمیشہ پہلی پوزیشن پر رہنا پسند رہا ہے۔ فلک کے آنے کے بعد دل ہی دل میں اپنا اور فلک کا موازنہ کیا اور اپنے آپ کو فلک سے قدرے بہتر پا کر خوش ہو گئی۔ خوبصورتی بہت تھی میرے پاس اور ذہانت بھی۔ خوبصورت تو فلک بھی بہت تھی، مگر میری سرخ و سفید رنگت کے سامنے اس کا گندمی رنگ کچھ ساملا محسوس ہونے لگتا، اور اس پر مستضاد فلک کی بے تحاشا اور مسلسل بولنے کی عادت۔ اس کی آواز کان کے پردے پھاڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جب فلک بولنے پر آتی تو شاید چپ ہو جانا بھول جاتی تھی۔ اسے شاید معلوم ہی نہ تھا کہ بولنے کے کچھ دیر بعد خاموش بھی ہو جانا چاہیے، جبکہ میں سوچ سمجھ کر بولتی تھی۔ فلک کسی بھی لحاظ سے مجھ سے زیادہ قابل نہ تھی، اور میں بے حد خوش تھی کہ زندگی کے اس مقام پر بھی میں ہی نمبر 1 ہوں، اور میں فلک کی طرف سے کسی قسم کا مقابلہ نہ دیکھتے ہوئے بالکل بے فکر ہو گئی۔ مگر فلک کی شادی کے 5 سال بعد مجھے احساس ہوا کہ گھر میں ہر کوئی فلک کے گن گاتا پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ میرے سسر جی۔ انہیں تو ویسے بھی سب کے سامنے بہوؤں کی تعریف کرنے کا شوق تھا، مگر مجھے اب محسوس ہونا شروع ہوا کہ میری نسبت فلک کی تعریفیں سسر جی زیادہ کرنے لگے ہیں۔ مثلاً 1 بار میری تعریف تو 2 بار فلک کی تعریف۔ میرا دیور رمیز تو تھا ہی بیوی کا دیوانہ، اس کے علاوہ میرے میاں بچے تک فلک کی تعریفیں کرنے لگے تھے۔ ساسو ماں تو خیر سے تعریفوں کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی نسبتاً محتاط رہتی تھی، مگر وہ بھی کبھی کبھار فلک کے گن گاتی پائی جاتی تھی۔ فلک جانے کب مجھ سے آگے نکل گئی تھی، اور اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں فلک کو آگے بڑھنے نہیں دوں گی۔ مجھے آج کل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا وزن کچھ بڑھ گیا ہے۔ اپنی اسمارٹنیس کو لے کر میں بہت حساس تھی۔ جو ہی محسوس ہوتا کہ میں موٹاپے کی جانب گامزن ہوں، فوراً سے بیشتر اپنی خوراک کم کر دیتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تو سوچنے لگی کہ فلک جانے اسمارٹ رہنے کے لیے کیا کرتی ہے، اسے کبھی ڈائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں۔ وہی اپنی دیورانی سے لاشعوری طور پر موازنہ کرنے کی عادت۔ فلک بیٹا اب آ بھی جاؤ، سسر جی نے فلک کو آواز دی۔ آئے ابو جان، دراصل چائے کا پانی چڑھا رہی تھی میں، کھانا کھاتے ہی آپ کو چائے کی طلب ہوتی ہے نا، فلک کا کہنا تھا، اور سسر جی کا فلک کو ڈھیر دعاؤں سے نوازنا تھا۔ کتنا خیال رکھتی ہو میرا، جیتی رہو، جگ جگ جیو۔ ابو جان آپ تو شرمندہ کر دیتے ہیں، سسر جی جینے کی دعا دیتے نہیں تھکتے، اور بہو جی ہر دم مرنے کو تیار۔ آج میری توجہ اپنے کھانے سے زیادہ فلک کے کھانے پر تھی۔ میرا فلک کے کھانے کو نظر لگانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، بس دیکھنا چاہتی تھی کہ فلک اپنی اسمارٹنیس برقرار رکھنے کے لیے کتنا کم کھاتی ہے۔ فلک نے پہلا بڑا سا نوالا توڑا، میں نے بھی اپنے لیے روٹی اٹھائی اور چھوٹا سا نوالا توڑ کر آہستہ آہستہ چبانے لگی۔ شروع سے میری عادت ہے کہ میں بہت آہستگی سے کھانا کھاتی ہوں۔ تیسرے نوالے پر دیکھا تو فلک کی روٹی ختم شد ہو چکی تھی اور اس نے دوسری روٹی اٹھا لی تھی۔ میں حیرت کے دریا ڈبکیاں کھانے لگی۔ میرے کھانے کی رفتار مزید کم ہو گئی اور فلک کے کھانے کی سپیڈ باؤلے گھوڑے کی مانند مزید تیز ہو گئی۔ اس نے جھٹ پٹ دوسری روٹی ختم کر کے تیسری روٹی اٹھا لی تو میں حیرانی کے سمندر میں مرنے والی ہو گئی۔ تیسری روٹی کے اختتام سے پہلے ملازمہ کی آواز آ گئی، بی بی جی چائے میں ابال آ گیا ہے، ابھی آئی۔ بیٹا کھانا تو پیٹ بھر کر کھا لو، ساسو ماں پیار سے بولی۔ نہیں امی، بس اب بھوک مر گئی ہے، اب نہیں کھایا جائے گا، چائے نہ گر جائے، فلک کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔
ओह, बेचारी ने रोटी भी पूरी नहीं खाई। सुसर जी अफसोस से बोले। मैंने फलक की तीसरी रोटी की बकाया जात पर एक नजर डाली, फिर दूसरी नजर डाली अपनी पहली रोटी पर, जो कि अब भी आधी बाकी थी। मगर अब मेरी भूख मर चुकी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि फलक बहुत खाती है और फिर भी स्मार्ट रहती है। फलक 5 साल में 3 अदद बच्चों की वालदा बन चुकी थी, जबकि मैं शादी के 7 साल बाद भी वही शुरू के जुड़वा बच्चों पर सब्र शुक्र करके बैठी थी। अपने जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बाद मजीद बच्चे पालने की हिम्मत हम दोनों मियाँ बीवी में ना थी। दोनों को दिन में मैं संभालती, जबकि रात को आशिर संभालते थे। मेरी नींद मेरी कमजोरी थी। मेरे दोनों बच्चे अब 6 साल के हो गए थे, इसलिए फिलहाल इस मामले में फलक की बराबरी कर ही सकती थी। इससे पहले कि फलक मजीद बच्चों की पैदाइश पर गौर करे, बल्कि वो तो शायद बगैर गौर के बच्चों की आमद पर यकीन रखती थी। अजी सुनते हैं, मैंने बहुत प्यार से आशिर के कंधे पर हाथ रखा। पिछले 8 सालों से आप ही की सुन रहे हैं इशल जान, और सारी जिंदगी बखुशी आपकी सुनने के लिए दिलो जान से राजी हैं। आशिर ने बहुत प्यार से जवाब दिया। मैंने भी मौका गनीमत जाना। मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक नया फर्द हम फैमिली में शामिल कर लें। जी, अब तो कोई और छोटा भाई है नहीं मेरा जिसकी शादी करके मजीद फैमिली बढ़ाई जा सके। ओहो, मेरा मतलब है कि अपने दोनों बच्चे 6 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, तो क्यों ना एक नन्ना मुन्ना बच्चा। क्या? अभी मेरी बात पूरी भी ना हुई थी कि आशिर क्या बोलते यूं मुझसे दूर होकर सामने सोफे पर जाकर बैठ गए, जैसे उन्हें बेड पर फलक बोस की सरकटी गुलहरी नजर आ गई हो। क्या हो गया? मैंने अचंभे से आशिर को देखा। इशल, मुझ में मजीद रातों को जाकर बच्चे संभालने की हिम्मत नहीं है। आशिर को शायद गुजरा वक्त याद आ गया था। तीसरा बच्चा हरगिज नहीं। क्यों नहीं? फलक और रमीज को देखिए, 5 साल में 3 बच्चे हो गए उनके। एक हम हैं कि शादी के 1 साल बाद भी 2 ही बच्चे थे और 7 साल बाद भी 2 ही हैं। इशल, उनके बच्चे फलक खुद संभालती है। रमीज को रातों को जागना नहीं पड़ता। वो फलक है, रात को जाग सकती है और सुबह भी जल्दी उठ सकती है। इसलिए अगर उनके 3 की बजाय 5 बच्चे भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे सिर्फ आपने संभाले हैं, मैंने नहीं। मुझे अफसोस हुआ आशिर की बात पर। रात को तो सिर्फ मैंने संभाले हैं। अच्छा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, थोड़ा मुताला करूँगा, उसके बाद वहीं सो जाऊँगा, मुझे तंग ना करना। आशिर कहते हुए उठकर चले गए और मैं शर्मिंदगी की कैफियत में मुब्तला हो गई। वाकई मेरी नींद ही मेरा सबसे बड़ा मसला है शायद। रात को सोने के बाद आंख ही ना खुलती थी। बच्चों के होने के बाद भी रात को जब जब बच्चे उठते आशिर ही संभालते। किस तरह बच्चों को संभालते ये मेरा मसला ना था, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और हर मुमकिन मेरी मदद करने की कोशिश करते थे। मैं आराम से अपनी नींद पूरी करती और सुबह कदरे देर से उठती। जब तक फलक नहीं थी तब तक नाश्ता मेरी सास की जिम्मेदारी थी। बाकी सारे दिन घर के काम मैं करती थी, मगर सुबह सुबह उठना मेरे लिए मसला था। मेरे ससुर जी अलील सुबह उठने के आदी थे। सुबह सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए होती। फलक की शादी से पहले ही जिम्मेदारी सासू माँ की थी और बाद में फलक ने ये जिम्मेदारी ले ली थी। जाने वो रात को भी सोती थी कि नहीं। जैसे ही ससुर जी सुबह उठकर लाउंज में आते, फलक की आवाज आती, अब्बू जी आप उठ गए, मैं चाय लाती हूँ। और थोड़ी देर बाद वो चाय का कप लिए हाजिर होती और ससुर जी उसे ढेरों दुआओं से नवाजते। हत्ता कि मेरी सास उठ जाती, मैं भी उठ जाती, बच्चे भी स्कूल चले जाते, आशिर और रमीज ऑफिस चले जाते, लेकिन ससुर जी का फलकनामा ना खत्म होता। ससुर जी के मामूल में शामिल था कि घर के हर फर्द के सामने फलक के सुबह उठने की और ससुर जी को चाय पेश करने की दास्तान रोजाना तफसील के साथ बयान करना। और 5 साल बाद मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने मामूल में तब्दीली लानी होगी। अपनी नींद को शिकस्त देकर ही मैं घर में फतह हासिल कर सकती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, मैं सुबह फलक से पहले उठूंगी और ससुर जी को चाय पेश करूंगी। मैंने फैसला किया और अलार्म लगाकर सो गई। सुबह 5:30 बजे अलार्म बज उठा। मेरा दिल तो ना था उठने का। मेरी नींद मुझे थपकियां दे रही थी, मगर मुझे फलक से आगे भी तो निकलना था ना। सो मैं नींद को नाराज करती उठ बैठी, मगर नींद भी किसी चाहने वाले महबूब की तरह मुझसे लिपटी लिपटी जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आज सुबह की चाय मुझे ही ससुर जी को देनी है। अपने इस अहद को दिल में दोहराते हुए मैंने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर वॉशरूम का रुख किया ताकि मुंह हाथ धोकर इस नींद को भगाया जाए।
अपनी नींद के साथ बेरुखी बरतते हुए एक आज़म के साथ मैंने अपने और वॉशरूम के दरमियान रखी टेबल पर सजा हुआ गुलदान जमीन बोस हो चुके थे। इशल, क्या हो गया? नींद में चल रही हो क्या? आशिर की आंख खुल गई थी। जी नहीं कहकर वॉशरूम में घुस गई। मुझे हर हाल में आज नींद से बेवफाई करनी थी ताकि सारा दिन सुसर जी की कहानी फलकनामा बमा सुबह की चाय सुनने से खुद को बचाया जा सके और सुसर जी सारा दिन इशल नामा बमा सुबह की चाय सुनाते रहे। वॉशरूम में जाकर जाने क्या हुआ, मेरी बेरुखी मेरी नींद को कुछ खास पसंद ना आई थी। नींद ने इंतकामन मुझ पर हमला कर दिया था और मैंने एक जमाई ली और बस एक लम्हे के लिए मेरी आंखें शायद नींद से बंद हुई थी और बस लो भला ऐसा क्या गुनाह हो गया था जिसकी इतनी बड़ी सजा। नींद से बेवफाई करने का भयानक इंजाम में वॉशरूम के फर्श पर उछलती हुई जा गिरी। वैसे तो हिलना जुलना उछलना कूदना सेहत के लिए अच्छा होता है, मगर ऐसी भी क्या उछल कूद के बंदा अपनी पाँव की हड्डी ही तोड़ ले। बस इतना याद है कि मैंने जोरदार चीख मारी थी और उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। पाँव पर प्लास्टर चढ़ा और मैं 3 महीने के लिए बेड को प्यारी हो गई। लो जी, जान छुटी। 3 महीने तक ना तो सुबह सवेरे उठने का मसला और ना ही सुसर जी से फलक की तारीफें सुनकर दिल जलेगा। अब तो बस कमरा नशीन होकर रहना पड़ेगा। फलक की तारीफों से बचने का ये हाल तो मैंने कतन ना सोचा था। ये हाल यकीनन मेरी नींद ने मुझसे करीब रहने के लिए निकाला था। अब चाहूँ तो दिन के 24 घंटे नींद की आगोश में पड़ी रहूं। ओह मेरे खुदा, मैंने सर थाम लिया। इशल भाभी अब उठ जाएं, 7 बज गए हैं। मैं कब से मिनी बस के हॉर्न की तरह बजे जा रही हूँ, पर आप है कि उठ ही नहीं रही हैं। फलक की सीटी बजाती आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई दे रही थी। मैंने सर हाथ रखकर करवट बदली। गुस्ल खाने में फिसल जाने वाक्य को 5 माह गुजर गए थे। मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया था। इसको कब से गलत फहमी हो गई कि ये मिनी बस का हॉर्न है, जबकि उसे ये मालूम नहीं कि बस का हॉर्न फिर भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, पर इस फलक का हॉर्न बजना शुरू होता है तो बजता ही चला जाता है। मैंने बेड पर आंखें मूंदे आशिर से हंसते हुए कहा। जानती थी कि वो भी फलक की सीटी बजाई आवाज से उठ चुके थे। लगता है उसके सिस्टम में खराबी है। हॉर्न बंद करने वाला बटन सही करवाना पड़ेगा। आशिर ने बंद आंखों से जवाब दिया। उठ गई हूँ फलक, आ रही हूँ। मैंने दरवाजा खोलकर कहा। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाएं, बच्चों को देर ना हो जाए स्कूल से। जितनी तेजी से उसकी जुबान चल रही थी उससे ज्यादा तेजी से फलक ने बावर्ची खाने में कदम बढ़ा दिए और मैं हंसती हुई पलटी। वॉशरूम से बाहर निकली तो आशिर बेड पर बैठे मुझे बागौर देखने लगे। क्या बात है इशल, काफी दिनों से देख रहा हूँ कि अब तुम फलक के बोलने पर गुस्सा नहीं करती हो और ना ही किसी मामले में फलक से मुकाबला करती हो। आशिर ने मुसलसल मुझे मुस्कुराते देखकर कहा और मैं जो कमरे से बाहर जाने का इरादा रखती थी, बाहर जाने की बजाय बेड के कोने पर आ बैठी, क्योंकि अब मुझे फलक की आवाज कम सुनाई देती है और उसकी अच्छाइयाँ ज्यादा दिखाई देती हैं। मेरे कहने पर आशिर बेहद हैरानी से मुझे देखने लगे। मैंने अपनी बीमारी के इन चंद माह में गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि फलक की तारीफें सब यूं ही नहीं करते, बल्कि फलक की दिन रात घर के लिए मेहनत और तमाम घर वालों से बेलौस मोहब्बत ही उसकी हर दिल अजीजी का सबब है। मेरी माजूरी के दिनों में उसने न सिर्फ मेरी खिदमत की बल्कि बच्चों और आपकी जरूरियात का भी ख्याल रखा। उसने मेरे तमाम काम बगैर बोझ समझे और बिना एहसान जताए अपने जिम्मे ले लिए। फलक तमाम घर वालों से मोहब्बत करती है, इसलिए सब उससे मोहब्बत करते हैं और वो ये सब किसी से तारीफें वसूल करने के लिए नहीं करती, बल्कि वो वाकई एक पुरखलूस लड़की है। अरे ईशल, तुम तो अब्बू जी के फलकनामे से तंग रहती थी, आज खुद ही फलकनामा पढ़ रही हो। आशिर काफी हैरान दिखाई दे रहे थे। फलक की बराबरी करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस उसी ही की तरह सबकी तरफ से दिल साफ रखना है और सबसे बेगर्ज मोहब्बत करनी है, सबके लिए अच्छा सोचना है और बस। मैं मुस्कुराते हुए कदरे इत्मीनान से कहा, वाह इशल, आज तो तुम्हारी बातों ने मेरा दिल ही जीत लिया। आशिर बहुत प्यार से बोले, सोच रहा हूँ कि अगर हमारी फैमिली में तीसरे बच्चे का इजाफा हो जाए तो कोई मुजायका नहीं है। आशिर मेरी तरफ कदरे झुकते हुए रोमांटिक मूड में बोले, जी नहीं, ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आपको बच्चे के लिए रातों में जगाने का कोई इरादा नहीं रखती। मैं हंसते हुए कमरे से बाहर निकली तो आशिर ठंडी आह भर कर दोबारा बेड पर दराज हो गए और मैंने बावर्ची खाने की तरफ कदम बढ़ाए, जहाँ किचन से फलक की सीटी बजाती आवाज आ रही थी। मैं कह रही हूँ, भाभी जल्दी से बच्चों को स्कूल के लिए उठा दो, 7 बज गए हैं।
اشل بھابھی آپ یہ چائے دیکھیے، میں بچوں کو جگا کر اٹھاتی ہوں۔ ابو آپ کو چائے اور چاہیے؟ بچوں کے کمرے کی طرف جاتے جاتے فلک نے لاؤنج میں بیٹھے سسر جی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا ابھی نہیں چاہیے، صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے مجھے چائے دیتی ہو، کتنا خیال رکھتی ہو میرا۔ سسر جی کا فلک نامہ شروع ہو چکا تھا۔